معروف صحافی و اینکر پرسن حامد میر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے منعقدہ سیمینار عدلیہ اور میڈیا پر حملہ سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب عبداللطیف آفریدی صاحب، اسٹیج پر موجود معزز وکلا رہنما اور خواتین و حضرات، آج کا یہ جو اجتماع ہے اس میں بہت سے مقررین نے کئی شاعروں کے اشعار پیش کیے ہیں، زیادہ تر مقررین نے صاحب لدھیانوی کے اشعار پیش کیے۔ میں کیونکہ صحافی ہوں تو اپنے ایک ایسے صحافی بزرگ کے ایک شعر سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے جیل میں بیٹھ کر ایک نظم کہی تھی، اور اس نظم کا ایک شعر ہے، قصے ہزار عشق کے اظہار بھی تو ہو، قصے ہزار عشق کے اظہار بھی تو ہو، خبریں بہت ہیں شہر میں اخبار بھی تو ہو۔ تو یہ شعر ہے جناب نہاد ورنا صاحب کا، جو پاکستان فیڈریشن یونین آف جرنلسٹ کے صدر تھے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں جب ان کو جیل میں ڈالا گیا تو وہاں پر انہوں نے یہ بات کی تھی، اور آج جناب عمران خان صاحب کی حکومت ہے، اور آج کے دور میں بھی یہ جو شعر ہے یہ اس طرح سے سچ نظر آتا ہے کہ اس وقت تو صرف اخبار تھا، اب ٹی وی چینل بھی ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ رات کو جب خبر نامہ شروع ہوگا مختلف ٹی وی چینلز پر، تو یہاں جو بہت سی تقریریں کی گئی ہیں وہ تقریریں آپ کو وہاں پہ نظر نہیں آئیں گی۔ ہو سکتا ہے چھوٹی موٹی خبر سنا لی جائے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو علی احمد خود صاحب نے یہاں پہ تقریر کی ہے جو شاید کسی ٹی وی چینل میں نہیں دکھائی گئی ہوگی، اس تقریر کی بنیاد پر ان کے خلاف کوئی مقدمہ قائم ہو جائے۔ تو ہم یہاں پر آج اس لیے اکٹھے نہیں ہوئے کہ ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہے، کسی ادارے کے ہم خلاف ہیں، یا کسی سے ذاتی جھگڑا ہے۔ مجھے لطیف آفریدی صاحب نے گائیڈ لائن دی ہے، میں اس کے مطابق ہی اپنی بات کروں گا۔ تو دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ سب لوگ جو ہے آپ لائر ہیں، آپ لوگ وکیل ہیں، آپ سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے علمبردار ہیں۔ آپ میں سے مجھے بہت سے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں جن کو جب سے میں نے صحافت شروع کی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ وکالت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کی جدوجہد بھی جاری ہے پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے۔ تو آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں آپ وہ کام کر رہے ہیں جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا مشن تھا، آپ اس مشن کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ تو جو قائد اعظم کا جو پیشہ تھا وہ بھی وکیل تھے، آپ بھی وکیل ہیں، جو قائد اعظم کا مشن تھا اس مشن کو آپ نے اپنا مشن بنایا ہوا ہے، تو اس لیے آپ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کیا تھا مشن؟ وہ یہی تھا نا، قانون کی بالادستی اور پرامن سیاسی جدوجہد۔ تو اس لیے آپ لوگ یہاں پر کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے۔ آپ کی تقریروں میں جو کچھ غصہ تلخی نظر آتی ہے تو اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ تو ہم یہاں پر سارے جو ہے قانون کی بالادستی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں کہا جاتا ہے جناب کہ ذرا آپ کچھ خاموشی اختیار کریں، کچھ دن کے لیے چپ رہیں، ذرا ملک کے حالات کا خیال کریں، پاکستان is facing many domestic and external challenges، تو ذرا خیال کریں۔ تو بھائی ہم اس وقت ہمارے ملک کے اندر ایک ایسی صورتحال ہے، ایک طرف قانون ہے، دوسری طرف لا قانونیت ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ صحافی جو ہے اس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ میں اس صحافت پہ یقین نہیں رکھتا، اس لیے کہ جہاں پہ ایک طرف قانون ہے، دوسری طرف لا قانونیت ہے، ایک طرف جمہوریت ہے، دوسری طرف ڈکٹیٹرشپ ہے، تو میں نے قانون کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، میں نے جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ میں اس میں غیر جانبدار نہیں ہوں۔ اس کی ایک وجہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جس گھر میں جنم لیا، میرا باپ بھی صحافی، پھر میں نے جب صحافت کی تعلیم حاصل کی تو اس میں جو مجھے پریس ہسٹری پڑھائی گئی، وہ پریس ہسٹری میں کون لوگ تھے؟ مولانا محمد علی جوہر، وہ غیر جانبدار تھے، تقریریں کرتے تھے، اخبار میں کالم لکھتے تھے، گرفتار ہو جاتے تھے۔ اگر وہ غیر جانبدار ہوتے کبھی گرفتار نہ ہوتے۔ میں نے پریس ہسٹری میں پڑھا مولانا ظفر علی خان، بار بار ان کا اخبار بند ہوتا تھا، بار بار گرفتار ہوتے تھے، وہ ایک جو برطانوی سامراج تھا اس کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے، تو وہ غیر جانبدار نہیں تھے۔ یہ آپ نے ہمیں اپنی جو ہم نے پاکستان میں جو نصاب پڑھا ہے،
जर्नलिज्म में, जिसको मैस कम्युनिकेशन कहते हैं, उसमें हमने शोरश कश्मीरी को पढ़ा है, मौलाना जफर अली खान को पढ़ा है, हमीद निजामी को पढ़ा है, कोई इनमें गैर जानबदार नहीं था, सारे जानबदार थे। उसमें कोई कायद-ए-आज़म के साथ खड़ा था, कोई जो है वो पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती के लिए खड़ा था। तो जब एक तरफ लाकानूनियत है और दूसरी तरफ कानून है, तो मैंने तो कानून के साथ खड़ा होना है। और अब तो मैं खुद बजाते खुद मैं एक ऐसी मिसाल बन गया हूं कि जब से मुझ पर पाबंदी लगी है, 3 हफ्ते होने वाले हैं, तो मैं ज्यादा इधर उधर नहीं जाता, लेकिन कहीं पे भी चला जाऊं लोग पूछते थे की होया मैंने कहा पर आपको नहीं पता की होया। मैं कहता हूँ यार एक तकरीर की थी, वो असद अली पूर को मार पड़ी थी, उसको मैंने तकरीर की थी, इसलिए मेरे को पाबंदी लगी। उन्होंने कहा पाबंदी लगी है, तकरीर तो आपने प्रेस क्लब के बाहर की थी, पाबंदी आपको टीवी चैनल पे लगा दी, अच्छा ये किसी कोर्ट का ऑर्डर है? कहता हूँ नहीं जी। ये पैगरा ने हुक्म दिया है? कहता हूँ नहीं जी। तो फिर पाबंदी कैसे लग गई? तो मेरे पास इसका जवाब नहीं है। अब ये क्या है? ये है लाकानूनियत, कि आपने पाबंदी लगा दी लेकिन उसका कोई रिटन ऑर्डर कहीं से नहीं है, किसी कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। तो अब क्या हूं मैं? हामिद मीर इस वक्त क्या है? सेंसरशिप की एक चलती फिरती जीती जागती मिसाल। और मैं उस मिसाल के तौर पे जब आपके सामने खड़ा हूं तो मुझे कहा जाएगा कि जरा ख्याल से बोलना भाई ख्याल से बोलूंगा। यही कह रहा हूं कि भाई मैं आइन और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखता हूं, जो भी मेरे साथ करना है आइन और कानून के मुताबिक करो। और अगर आप सहाफियों को जो मार पड़ती है, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, मतीउल्लाह खान को अगवा किया जाता है, अफसार आलम को गोली मार दी जाती है, असद नूर के घर में घुस के उसको मारा जाता है, तो अगर हम ये मुतालबा करते हैं कि मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करो तो आप गिरफ्तार करते हैं, आप क्यों नहीं गिरफ्तार करते? गिरफ्तार जब मुल्ज़िमान गिरफ्तार नहीं होते कहते हैं अच्छा वो लड़की के भाई ने मारा था। मैं उस सूरत में नहीं जाता, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जब 2007 का यहाँ बहुत जिक्र हुआ, 2007 की लॉयर्स मूवमेंट का यहाँ बहुत जिक्र हुआ, 2007 की लॉयर्स मूवमेंट में आपके पास सोशल मीडिया की ताकत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद जैसा कि यहाँ में बताया गया कि महदूद वसाइल के बावजूद आप लोगों ने एक तहरीक चलाई और आपकी तहरीक ने बहुत सी कामयाबियां हासिल की। तो आज तो सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब जो 2007 की जो बात होती है, तो किसी ने कहा कि इस वक्त हालात जो मुशर्रफ के माशरा से भी ज्यादा तशवीशनाक है। उस वक्त मेरे पे सिर्फ टीवी चैनल पर पाबंदी लगी थी, मैं अखबार में लिखता था, लेकिन अब कोई पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ नहीं है, जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत है, मेरे पे टीवी पर भी पाबंदी है, अखबार में भी लिखने पर पाबंदी है। तो आप देख ले तो सूरत क्या है। अच्छा, उस वक्त इमरान खान साहब जो है वो लॉयर्स मूवमेंट के हामी थे। वो जब हम पर पाबंदी लगी तो जो PFUJ RIUJ जो है वो सड़कों पर हमारे शो कराया करती थी, वो वहां पर आते थे और ऐसे मुक्का लहरा के कहते थे अगर मैं वजीर आज़म बन गया तो पाकिस्तान में सहाफत आजाद होगी। तो अब हम वजीर आज़म बन चुके हैं और सेंसरशिप की जीती जागती मिसाल जो है वो आपसे मुतालबा कर रहा है कि पाकिस्तान में सहाफियों पर जो पाबंदियां लग रही हैं, जो जुडिशरी और दीगर जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं उनके साथ जो हो रहा है उसको बंद किया जाए। मुझे जो तकरीर मैंने की थी जिसकी वजह से पाबंदी लगी, उस तकरीर पर मेरे कुछ साथियों ने कहा कि यार उसमें आपका लहजा बड़ा तल्ख था, तो वो जो तल्खी है उस पर माजरत कर लो। तो जब नासिर जैदी साहब जिन्होंने जनरल ज़ियाउल्लाह के कोड़े खाए हुए हैं, जब वो जैसा बुजुर्ग मुझे कहेगा तो मैं इनकार तो नहीं कर सकता। मैंने कहा कि लहजे की तल्खी पे मैं माजरत कर लेता हूँ। तो मुझे एक बुजुर्ग सहाफी ने ये कहा कि आपने बहुत अच्छा किया है। मैंने कहा जी वो कैसे? उन्होंने कहा आपने ये साबित कर दिया है कि एक सिविलियन जो है वो सिर्फ अपने लहजे की तल्खी पे माजरत कर लेता है, लेकिन परवेज मुशर्रफ आइन भी तोड़ दे कभी माजरत नहीं करता। ये फर्क है। तो हमने आज यहाँ पे जो भी यहाँ पे जो गुफ्तगू हुई है और आगे हमने जो भी करना है वो इस तरीके से करना है कि जो कायदे आज़म का रास्ता है हम उस रास्ते पर चलते रहें। और जो हबीब जालिब साहब ने कहा था फर्जी मुकदमात हैं, झूठी शहादतें हम फिर भी लिख रहे हैं, जुनून की हकायतें, तो ये जुनून की हकायतें हम लिखते रहेंगे। ये मैं कोई अफसानवी बात नहीं कर रहा। मुझे कोई शौक नहीं है कि मुझे जनाब कुछ महीनों के बाद दोबारा आप जियो पे बहाल कर दें, मैं फिर टीवी पे
10-15 दिन में बहुत कुछ सीखा है। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ दोबारा रिस्टोर होके टीवी स्क्रीन पे जाके बैठ जाना मसले का हल नहीं है। मसले का हल वो है जो यहाँ पे आज तकरीरों में बयान किया गया और जो आपकी रेजोल्यूशन में आएगा, वो है असल रास्ता। उस पर चलते हुए बेशक 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल के लिए जो है ना हम पर पाबंदी रहे, हमें पाबंदी कबूल है, लेकिन एक दफा अब ये जो पाबंदियां आपने लगाई हैं, ये पाबंदियां हमने खत्म करवानी है। खास तौर पे जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से जो बिल लाया गया है, इस बिल के हवाले से बड़ी बात हुई है। इसमें 3 साल कैद के अलावा एक और भी चीज है, वो 2.5 करोड़ के जुर्माने हैं। और इसके अलावा आप इस जो ट्रिब्यूनल होगा, मीडिया ट्रिब्यूनल, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के अंडर है, ये हाई कोर्ट के अंडर नहीं है, जुडिशरी के अंडर नहीं है। और इसका जो फैसला होगा, जो सजा दी जाएगी, उसको आप हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, आपको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो ये ड्रैकोनियन लॉ से भी बढ़कर एक लॉ है, और इसलिए इस लॉ की मुजाहमत करना सिर्फ सहाफ़ियों का काम नहीं है, तमाम मुकातब फिक्र का ही काम है। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप 2007 में परवेज मुशर्रफ के खिलाफ एक तहरीक चलाकर और उसको शिकस्त दे सकते हैं, तो आज के जो हुक्मरान है ये परवेज मुशर्रफ से ज्यादा ताकतवर हुक्मरान नहीं है। और अगर आपका इत्तेहाद कायम हो जाए और आप आज एक किसी चार्टर पर इत्तेफाक कर लें और उस पर अमल दरामद के लिए राजी हो जाए, तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होगी। हम कायद-ए-आज़म के रास्ते पे चलते हुए पाकिस्तान में जमहूरियत के दुश्मनों को शिकस्त दे सकते हैं। जब मैं यहाँ पे हाल में आया अफरीदी साहब, तो एक सीनियर वकील हैं, वो मुझे मिले, तो उन्होंने कहा कि आप ही तकरीर करेंगे। मैंने कहा जी अगर करने दी तो कर लूंगा। तो कहते हैं मेरा ख्याल है कि करने देंगे आप। तो मैंने कहा अच्छा। कहते हैं अगर आप तकरीर करें तो यार वो आप पर जब 2007 में पाबंदी लगी थी ना, आप मुशर्रफ दौर में, तो उसमें आप रोड शोज किया करते थे, तो हर शो के आखिर में आप वो हबीब जालम साहब के कुछ अशार पढ़ा करते थे, वो आज जरूर पढ़ना। मैंने कहा जी वो क्यों पढ़ूं? कहते हैं यार वो लगता है कि उसमें कोई जादू मंत्र वाली बात थी। वो आप अशार पढ़ते थे, तो जो हबीब जालम ने उन अशार के में जो पैगाम दिया था वो पूरा हो गया, वो बात सच साबित हो गई। तो इंशाल्लाह अब भी सच साबित होगी। तो मेरे बुजुर्ग जो है, बुजुर्ग वकील जहां अभी तक बैठे हुए, आखिर में मैं हबीब जालम साहब के वो अशार पढ़ूंगा जो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक के दौरान, जो वकीलों की तहरीक थी, सहाफियों की तहरीक थी, इंसानी हकूक के कारकुनों की तहरीक थी, उस तहरीक में हमने वो हबीब जालम साहब के अशार जगह जगह बार बार पढ़े और फिर उनको अपना एक नारा बनाया, और वो नारा सही साबित हुआ था। और वो अशार क्या थे? मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्म तो का पाला, मुझे फिक्रे अम्न आलम, तुझे अपनी जात का गम, मुझे फिक्रे अम्न आलम, तुझे अपनी जात का गम, मैं तलू हो रहा हूं, तू गरूब होने वाला, तू गरूब होने वाला।